कर लेंगे सेक्शन बी का। द आइडिया इज कि 2 से 3 दिन में ये पेपर हो जाए। ईद से पहले पहले मेरा जी मोहम्मद हारिस एस क्लास है बेटे। अस्सलाम वालेकुम रेमिशा। जी बेटे, ये मैंने पेपर निकाल के रखा हुआ है आपका, और लेट अस नाउ मेक अ स्टार्ट। देखो बेटे, समवन इज स्टिल जॉइनिंग। अस्सलाम वालेकुम लाइबाज, एंड हियर वी आर। जी बेटे, दिस इज मई जून 23 वेरिएंट 21। 2 आवर्स होते हैं 40 मिनट्स पर सेक्शन के लिए। लेट्स लुक एट द डेटा रिस्पॉन्स। Unemployment in India. Changes in the rate of unemployment in India between July 20 and May 21 can be seen in figure 1.1. इसको हम बाद में क्वेश्चन के मुताबिक सॉल्व करेंगे। India's unemployment rate rose in December 2020, reaching a 6-month high. The fact that the unemployment rate has been rising during this period, despite an economic recovery, has raised concern amongst economists at the Center for Monitoring Indian Economy, CMIE Research Institute in Mumbai. Although they recognize that there are possible difficulties in the measurement of unemployment. One of the reasons for the increase in unemployment in December 20 is an increase in frictional unemployment. According to CMIE, India's labor force increased from 421 million, 421 million in November 20 to 427 million in December 2020, and the majority of these new workers were unable to find work immediately. उसके बाद बेटे immediately, हाँ, many of these people are reluctant to relocate. जी यशलीना बोले, ऊंचा बोले। No, maybe the students graduated that year, more students graduated that year, whatever reason. 6 million is a large number. India has a large population as well. ठीक है, anyways, तो many of these people are reluctant to relocate to take jobs. Yeah, to take jobs, and others are unaware of job vacancies. Another reason for this increase in unemployment in India is because of seasonal unemployment. One of the main reasons behind rising unemployment has been the failure of the agriculture sector to absorb the additional labor. One economist at CMIE has stated farming is the last resort of many who are without work. However, December is not the month in which farming can absorb labor. This is the month when it needs fewer workers. In December 2020, the job losses from agriculture were 9.8 million. लास्ट छोटा सा पैराग्राफ है जी। द इकोनॉमिस्ट एट CMIE stated that the rise in unemployment in certain months was not a good sign for the Indian economy, as it could lead to higher income inequality and poverty. बच्चों, कौन सा टॉपिक मुसलसल इसमें हो रहा है? कौन सा टॉपिक? अनएम्प्लॉयमेंट। 100%। फिर उसने थोड़ा सा बोला यहाँ पे पॉसिबल डिफिकल्टीज टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये भी पूछा जा सकता है। सीजनल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एक डेटा दिया हुआ टेबल। जी बेटे, जी जी जियोग्राफिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की भी उन्होंने बात की है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी क्वेश्चनड। लेट्स स्टार्ट विद the first question. Using the data in figure 1.1, calculate the change in India's unemployment rate between July 20 and May 21. आपने 2 महीनों को कंपेयर करना है, ट्रेंड नहीं बताना। आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताना है। जुलाई 20, मई 21। ये है मेरे बच्चों आपके सामने, ये है जी जुलाई 20। इसमें कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है? किसी को नहीं आ रहा? उसमें बीच में लिखा हुआ है 7.4%, और मई 21 में उसने लिखा हुआ है जी कि 11.9। सो कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है? बिल्कुल सही है। कैसे किया आपने?
11.9 minus 7.4, 4.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इजाफा हुआ है. वाई डिड नॉट वी यूज दैट चेंज और ओरिजिनल इंटू 100 का फॉर्मूला, क्योंकि उसने परसेंटेज चेंजेस ही हमें दिए हुए थे. सो वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट दैट. नंबर अनएम्प्लॉयड दिए होते तो फिर हम वो करते कि भाई मई 21 में लेट्स से 5 मिलियन थे, 20 में 4 मिलियन थे, तो 5 माइनस 4 ओवर 4 इंटू 100 करते. ये इसलिए किया था हमने. Right, let's move on to second question. Most of you should get the 2 marks in the first part. Using the information provided, explain how agriculture caused seasonal unemployment in India in December 2020. मार्क नहीं होता, लेकिन अच्छा लगता है कि आप डेफिनेशन से स्टार्ट करो. Would somebody want to define seasonal unemployment? बिल्कुल सही है जी. Seasonal unemployment occurs when workers are let go due to temporary change in consumers' expenditure, such as hospitality and agriculture. इंडिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की उसने यहाँ पे कुछ बात की है. अच्छी तरह पिक करें, मुझे बताएं. 2 मार्क्स के लिए डेटा में से ही निकालना है और बता देना है अपने वर्ड्स में. क्वेश्चन है बेटे, यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक्सप्लेन हाउ एग्रीकल्चर caused seasonal unemployment in India in December 2020. ठीक है जी, थोड़ा सा और बताएं. बिल्कुल, ये 2 बातें पता करनी थी हमने. वन रीजन इज लेबर फोर्स बढ़ी है. ऊपर लिखा उसने 6 मिलियन लोग एक्स्ट्रा आए हैं लेबर फोर्स में. और मेन रीजन अनएम्प्लॉयमेंट की उसने कहा सीजनल हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर फेल टू अब्सॉर्ब एडिशनल लेबर. साथ में उसने कहा कि क्योंकि महीना 2020 दिसंबर का था, दिसंबर इज नॉट अ गुड मंथ फॉर एग्रीकल्चर टू हायर मोर वर्कर्स, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ. ठीक है, अगर उसको फ्रिक्शनल लेके जाते हैं तो उसमें लेके जाएं, लेकिन ठीक है. सूलन फ्रिक्शनल में ही सीजनल आती है, बट एनीवेज दैट्स फाइन. इसमें उसने अलग किया हुआ है, इसमें उसने अलग किया हुआ है. ठीक हो गया बच्चों. रीजन दो ही उसने साफ साफ लिखी हुई हैं. In India is because of seasonal unemployment. One of the main reasons behind rising unemployment has been the failure of agriculture sector to absorb the additional labor. दूसरे पे उसने कहा जी फार्मिंग इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर मेनी वर्कर्स हु आर विदाउट वर्क, लेकिन दिसंबर इज नॉट अ गुड मंथ क्योंकि उसमें उसके लिए जॉब्स नहीं होती वर्कर्स के लिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है ड्यूरिंग दिसंबर. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो? Excellent जी. Let's move on to the next question. अब any smart kid should have scored all four. तीन भी स्कोर कर लें, you already on the right track. Consider the extent to which difficulties consider the extent to which difficulties may arise in the measurement of unemployment in India. अब इसमें डेटा में कुछ नहीं था. Problems of measuring unemployment. जी बच्चों, यूज योर सिलेबस नॉलेज और मुझे बताएं इंडिया जैसे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं. दिस आई वुड से इज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे इस अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर को बहुत इग्नोर करते हैं. अच्छा बोला आपने शीना, सॉरी हमजा, दोबारा बोलिएगा. आई वाज लिसनिंग टू शीना. दोबारा बोलिए. देखो, उसने हमें कोई मेजर नहीं बताया हुआ. आप जो भी यूज करोगे यहाँ पे ठीक होगा. You have to mention more than one. Okay, let's see जी. हमारे पास दो मेजरमेंट के तरीके हैं, क्लेमेंट काउंट मेजर और लेबर सर्वे मेजर बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. क्लेमेंट काउंट क्या है जी?
उसके अंदर हम नंबर ऑफ क्लेमेंट्स जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट हासिल करने के लिए क्लेम दाखिल किए हुए हैं उसको डिवाइड करते हैं क्लेमेंट्स प्लस अनएम्प्लॉयड से और इनटू 100 कर देते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या होती है? अक्सर लोग क्लेम फाइल नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है या उनको उम्मीद है जल्दी जॉब लग जाएगी, सो दे डू नॉट फाइल अ क्लेम। या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कहाँ जॉब सेंटर्स हैं। इंडिया जैसा कंट्री जो कि अभी लेस डेवलप्ड कंट्री है, उसमें जॉब सेंटर्स शायद इतने ऑर्गेनाइज ना हो, लोग क्लेम फाइल ना करते हों, या कुछ लोगों ने क्लेम फाइल किए हो और जॉब कर रहे हो हिडन सेक्टर में, वो भी गलत काउंट हो जाएगा। साथ में आईएलओ के मेथड पे जाएं तो इंडिया जैसे कंट्री में इतनी एजुकेशन नहीं है, तो जो सर्वेयर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है स्पेशली रूरल एरियाज में। तो जाके पता करना कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो सही एक्यूरेट नहीं आ सकता। इंडिया और पाकिस्तान में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि बज़ाहिर बंदा जॉब कर रहा है लेकिन कोई मीनिंगफुल वो काम नहीं है, बिल्कुल वो अपने लेवल से एक पीएचडी जो है वो झाड़ू लगा रहा है, तो उसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वो भी अनएम्प्लॉयड नजर नहीं आएगा लेकिन असल में अनएम्प्लॉयड होगा। बच्चों समझ आ गया? ये थोड़ा सा और करूं क्योंकि मुझे लगता है इस चैप्टर पे रिवीजन और ग्रिप कम होती है बच्चों की। Any 2 points well explained should get you the marks. Every one should get you 2 marks. मैं आपको तीन बता। जी बेटे जी। अनस मैं कह रहा हूं मैं तीनों दोबारा बता रहा हूं। फर्स्ट वन इज in the claimant count measure, some unemployed people may not have filed the claims thinking they'll get a job soon, or they have another source of income, तो वो नजर नहीं आएंगे अनएम्प्लॉयड में। Secondly, G, hidden unemployment. When people are working way below their qualification level, they seem employed but they actually are unemployed. Meaningful काम कोई नहीं कर रहे। एक पीएचडी को रिसर्च करनी चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लास्टली जी, इंडिया में इतनी एजुकेशन नहीं है तो अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेज कर रहे हैं तो अच्छा लैपटॉप्स इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है कि दूर दूर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, तो सही नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड नज़र नहीं आएगा। स्पेशली रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर में बहुत लोग इनके जॉब करते हैं तो वो सही अनएम्प्लॉयमेंट फिगर हमें नहीं मिलेंगे। और भी इसमें बथेरी बातें हैं लेकिन आप बेसिक अपने सिलेबस में से ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। Anyone जी, any confusion here? सिंपल रखो, बंदा एम्प्लॉयड है लेकिन उसने क्लेम फाइल नहीं किया हुआ, सॉरी क्लेम फाइल किया हुआ है लेकिन कोई हिडन जॉब कर रहा है, वो फिगर्स को खराब करेगा। क्लेम फाइल ही नहीं किया क्योंकि उसको है कि मुझे जल्दी जॉब मिल जाएगी, मेरे पास और सोर्स ऑफ इनकम और सेविंग्स है। पढ़े लिखे सर्वेयर्स नहीं है इसलिए वो देहातों में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, अच्छे इक्विपमेंट लैपटॉप्स डेटाबेसेस ना होने की वजह से सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो सकी। और इंडिया तो स्पेशली है भी बहुत रूरल एरियाज में, बहुत मुश्किल है वहाँ पहुँचना एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कि लोग अपने लेवल से नीचे लेस क्वालिफाइड जॉब कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड लेकिन लग रहे हैं एम्प्लॉयड। Next, G, assess whether seasonal unemployment is likely to be a more serious problem than frictional unemployment for India's economy. अब यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जैसे हम पढ़ते हैं अपना टेक्स्ट बुक्स में, फ्रिक्शनल के अंदर ही सीजनल आती है, लेकिन यहाँ पे उसने फ्रिक्शनल को सीजनल से अलग किया है। तो कैन समबडी टेल मी फ्रिक्शनल की मेन टाइप कौन सी है और सीजनल को उससे कैसे अलग करेंगे? यस एग्जैक्टली, ये चाह रहा था कि फ्रिक्शनल को सर्च अनएम्प्लॉयमेंट मानो और सीजनल को अलग करो। ठीक है, अब जाके डाटा पे देखते हैं। असेस का वर्ड मींस लुक एट बोथ साइड्स और कौन सी ज्यादा सीरियस लग रही है आपको, बहुत साफ साफ आपको। लेट्स सी कहाँ पे फ्रिक्शनल की बात हुई है, ये पैराग्राफ ये वाला फ्रिक्शनल का है। ऑल ऑफ यू टेक सम टाइम टू गो थ्रू इट। We also said that the seasonal one will come about because of the fictional. यस, I said, could we also? ये बिल्कुल कह सकते हो।
जी, पहले वाले पैराग्राफ में हमें क्या पता लग रहा है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्यों इजाफा हुआ। 421 मिलियन लेबर फोर्स में थे नवंबर में, 427 आ गए दिसंबर 20 में। 6 मिलियन लोग एंटर हुए लेबर फोर्स में, लेकिन उनको इमीडिएटली जॉब नहीं मिली। उसकी वजह, बहुत सारे इनमें से रिलक्टेंट थे कि हम किसी और इलाके में जाके जॉब ढूंढ लें, या कुछ को इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, तो सर्च अनएम्प्लॉयड, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयड ज्यादा हो गए। समझ आ गया? अब क्योंकि जी जी बेटे, somebody was asking a question बच्चे। ओके ओके ओके, अब देखते हैं दूसरा वाला। सीजनल क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 9.8 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हुए दिसंबर 20 में। दिसंबर में फार्मिंग के लिए इतने वर्कर नहीं चाहिए थे। लोग जो थे वो जॉब करना चाह रहे थे, लेकिन उनको जॉब क्यों नहीं मिली? क्योंकि दिसंबर में फार्मिंग में वर्कर्स को चाहिए नहीं होते इतने, बल्कि वो ले ऑफ कर रहे होते हैं वर्कर्स को। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर फेल टू अब्सॉर्ब देम, और आखिरी रिजॉर्ट लोगों का अक्सर होता है कि कुछ नहीं और मिल रहा तो एग्रीकल्चर का काम कर लें, अनस्किल्ड वर्कर स्पेशली। तो एज अ रिजल्ट 9.8 मिलियन हुए। आप लोगों के ख्याल में ज्यादा सीरियस कौन सी है? बड़ा आसान हिंट है नंबर्स के थ्रू। ऊपर वाली में देखो, सीजनल। वेरी गुड हमजा, कैसे कैसे? उसमें एटमोस्ट 6 मिलियन हो सकते हैं। तो सीजनल सीम्स टू बी मच मोर सीरियस, बिकॉज इन दिसंबर अलोन देर वर अबाउट 9.8 मिलियन अनएम्प्लॉयड, वेरेज फ्रिक्शनल में जो 6 लाख एक्स्ट्रा आए थे, उनका जो है, हाँ 6 लाख, 6 मिलियन, हाँ 6 मिलियन ही एक्स्ट्रा आए थे, तो मैक्सिमम 6 मिलियन हो सकते हैं अनएम्प्लॉयड। जी बेटे, इसलिए ना। But the 9.8 million is a result of those 6 million. So technically that's नहीं, उसने अलग अलग किया, अनदर रीजन किया उसने, जैसे आपने खुद बोला था, ये बिल्कुल उसने सेपरेट किया। ठीक है जी। No, तो in December 2020, the job losses from agriculture were 9.8 million, which means people who already had jobs, they were laid off to 9. तो वही देखो ना कि सीजनल की वजह से, सीजन, हाँ आप सही पूछ रहे हो। So these are not the new workers, these are the हाँ, दीज आर दी ऑलरेडी लेड ऑफ वर्कर्स। ठीक है, शीना का क्वेश्चन था कि 9.8 मिलियन तो ऑलरेडी जो वर्कर्स थे वो निकाले गए हैं या नए? मैंने कहा जी, वही जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको निकाला गया है, तो ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा खतरनाक है। इंडिया इज़ अ हाईली एग्रेरियन इकोनॉमी, हम अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान की तरह बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं एग्रीकल्चर पे। तो ये कहना कि सीजनल ज़्यादा खतरनाक है इज़ अ करेक्ट कंक्लूजन हियर। आपने क्या करना है, आप कहिए जी, frictional unemployment rose because 6 million new people entered the market, but majority of these could not get a job। उसकी वजह, या तो वो दूसरे इलाके में जा नहीं पा रहे थे, अनलाइकली थे कि जाना नहीं चाह रहे थे, या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। ईच केस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी उसकी वजह से। दूसरी रीजन जो सीजनल की थी, उसकी वजह एग्रीकल्चर सेक्टर का था कि वो वर्कर्स को जो फारिग हुए थे उनको अब्जॉर्ब नहीं कर सका, बल्कि उन्होंने वर्कर्स निकाले दिसंबर में। तो एज अ रिजल्ट 9.8 मिलियन वर्कर अनएम्प्लॉयड हुए, विच सीम्स टू बी अ rather large number compared to the possible frictional unemployment। So seasonal is much more dangerous in India। सबको समझ आ गया बच्चों? डेटा में से ही सारा निकालना था। All right, last question जी। Assess the possible measures that could be taken to increase employment in a country such as India। बेटे हमेशा ऐसे क्वेश्चन को पॉलिसीज से लिंक करो, डिमांड साइड, सप्लाई साइड। आप कहें जी कि हाँ, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंडिया यूज कर सकता है, डायरेक्ट टैक्सेस कम करें, पहले उसकी बात कर लेते हैं, और टैक्सेस कम करें। basic ones first. व्हाट बेसिक? Some of the transparency and सॉरी, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक जा रहे हो, लेकिन एक तरतीब बनाते हैं ना, पहले डिमांड साइड पॉलिसीज को हैंडल करते हैं, ठीक बोल रहे हो, और फिर सप्लाई साइड को। हर को आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे एंड पे, पॉसिबल मेजर्स में से बेहतर कौन से हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन यूज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी।
whereby they reduce direct taxes. कई बच्चे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस लिख देते हैं, बेटे वो सप्लाई साइड पॉलिसी है, वो डिमांड साइड पॉलिसी नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस कम करने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इससे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी? कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी जो एग्रीगेट डिमांड गिरने से होती है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। फिर आप बोलें जी मॉनेटरी पॉलिसी वो यूज कर सकते हैं, एक्सपेंशनरी, इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं, मनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, लेंडिंग आसान कर सकते हैं, ठीक है, या एक्सचेंज रेट को डीवैल्यू कर सकते हैं। ऑल ऑफ दैट विल रिजल्ट इन राइज इन एग्रीगेट डिमांड थ्रू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के इंजेक्शन। इससे भी ज्यादातर साइक्लिकल कम होगी, कुछ हद तक इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इंपोर्टेड गुड्स की वजह से आ रही थी, एक्सचेंज रेट डीवैल्यू करने से वो कम हो जाएगी। फिर आप कहें जी देयर आर मेनी सप्लाई साइड मेजर्स, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कॉज लेबर टू बी फायर्ड, तो उसको हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी पे, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जी हम क्या इसका नाम है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स इन जनरल करा सकते हैं। एज अ रिजल्ट हमारी सीजनल, फ्रिक्शनल, हर तरह की अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाएगी। सो आप ये भी बोल सकते हो, अ मिक्सचर ऑफ डिमांड साइड पॉलिसीज इन द शॉर्ट रन एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज विच यील्ड बेनिफिट इन द लॉन्ग रन कैन बी यूज्ड। और आप कह सकते हो कि सप्लाई साइड पॉलिसीज आर बेटर फॉर अदर कॉजेज, फॉर साइक्लिकल डिमांड साइड पॉलिसीज आर बेटर। बच्चों समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन? नाउ लेट अस हैव अ क्विक लुक एट द मार्क स्कीम ताकि हम वेरीफाई करें। जी बच्चों, ये आ गया पहले वाला 4.5%। ऑल ऑफ यू गॉट इट रॉन्ग, राइट, ठीक है। अच्छा एक मार्क क्यों दे रहे ठहरो, इसमें होल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज इंक्रीज फ्रॉम, अच्छा वो कहता है फिगर भी लिखो कि जुलाई 20 में 7.4% था और मई 21 में 11.9% था। इंक्रीज जो है 4.5% है इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। समझ आ गया? तो ये पूरी बात लिख दें। वैसे इनकी भी कोई एक से लाइन नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। 12 2 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए। फिर जी यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक्सप्लेन हाउ एग्रीकल्चर कॉज्ड seasonal unemployment in India in December 20. The agriculture sector has failed to absorb the influx of additional labor. December is not a good month to be taking on more agricultural worker. It is more likely to be a time when agriculture jobs are being lost. उसके रिजल्ट में 9.8 मिलियन वर्कर्स जॉब लॉस्ट हुई हैं, मोर देन 6 मिलियन एडिशनल लेबर आई थी। लिंक है उसका। समझ आ गया बच्चों? वही डेटा उठा के लिख दिया इन्होंने और 2 मार्क्स दे दिए। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? जी बेटे पूछें। नहीं देखो, वो है वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बोला था कि वो यूज करेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा कि रिलेटिव चेंज कितना है, 68.8%। कैसे किया आपने जी? 11.9 माइनस 7.4 डिवाइड बाय 7.4 इंटू 100, उसके भी वो एक मार्क देने को तैयार है। तो इज बीइंग लिटिल फ्लेक्सिबल हियर। मासल समझ आ गई? Okay, let's move on to the third question. Consider the extent to which difficulties may arise in the measurement of unemployment in India. Inactive workers, not actively seeking work, who might look for work if their situation changed. Ignore करो, out of bounds हमारे syllabus से था. Discourage, disincentivize workers who have had no success in finding unemployment. कर सकते हैं, लेकिन ये difficulties in measuring unemployment नहीं है, reasons for unemployment है. So I do not agree with the first two. Disguised unemployment ये ठीक है, hidden unemployment, people might be in employment but are not doing any reasonable meaningful work. PhD आदमी सफाई का काम कर रहा है. Unreported unemployment, some workers in India may be registered as unemployed but in fact are employed. Claim file किया हुआ है लेकिन इनफॉर्मल इकोनॉमी में किसी पान की दुकान पे, किसी छोटे बिजनेस सोल ट्रेडर में जॉब कर रहे हैं, अपने अंकल की दुकान में जॉब कर रहे हैं. फिर जी एफिशिएंसी ऑफ टैक्स कलेक्शन सिस्टम, यानी लेबर फोर्स सर्वे के लिए जो उनकी टीम्स हैं
उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, वो कितना अच्छा टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, कितनी अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स ले रहे हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, रूरल एरियाज वगैरह में ढूंढना कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट में है, बहुत मुश्किल है. इवेल्युएशन जी, वैलिड जजमेंट कि देर आर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया इज स्टिल a less developed country. It is on the road for development, but still there are many areas which are far behind the major city centers in terms of growth and development. तो वहां से इंफॉर्मेशन लेना, कंप्यूटर्स नहीं है, डेटाबेसेस नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है. एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? देखो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, लेबर फोर्स कितनी है, फिर कहां कहां से जाके डेटा लेना, ये सारा स्केल ऑफ ऑपरेशन में आ जाएगा. बहुत लंबा चौड़ा सर्वे करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा. नेक्स्ट जी, लास्ट जी, जवाब कुछ पढ़े सवाल को एक बार, सवाल को एक बार पढ़े बेटे. व्हाट्स नॉट टू अंडरस्टैंड? आपने दो बातें की, आपने कहा मुझे सवाल समझ नहीं आया, फिर आपने कहा मुझे जवाब समझ नहीं आया. क्लैरिफाई करें आपको क्या समझ नहीं आया. हैव यू रिवाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर जवाब? उसमें आपने दो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखे हैं. उन्हीं के डिसएडवांटेजेस आंसर है आपका. प्रॉब्लम्स इन द मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया. अगर क्लेमेंट काउंट मेजर कर रहे हैं तो लोगों ने क्लेम दाखिल किए हुए हैं, लेकिन छुप के इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब भी कर रहे हैं. बज़ाहिर अनएम्प्लॉयड लग रहे हैं लेकिन जॉब पे हैं. हिडन अनएम्प्लॉयड नजर नहीं आ रहे. बहुत पढ़े लिखे हैं, लो लेवल की जॉब कर रहे हैं, बज़ाहिर जॉब पे हैं लेकिन असल में वो मीनिंगफुल जॉब नहीं कर रहे. टीम्स जो सर्वे कर रही हैं टैक्स कलेक्शन की और अनएम्प्लॉयमेंट के, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वो सही इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर पा रहे. इसी तरह रूरल एरियाज में बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ी लेबर फोर्स है, स्केल ऑफ ऑपरेशन ही इतना है कि सर्वेस करना, मालूम करना कि एग्जैक्टली कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत मुश्किल है. तो येस, देर आर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन अ लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स नहीं है, तो जाहिर बात है इन्फ्लेशन मेजर करना मुश्किल हो रहा है. नाउ यू गॉट इट जवाब जी? जी बोले. हम्म. बट हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमिक्स कहती है कि बज़ाहिर तो एम्प्लॉयमेंट में हैं लोग, बट दे आर बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड. जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाने की बजाय अगर गाड़ियां साफ करने का काम करूँ तो आई विल बी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड. ये मकसद, रिसोर्सेज सही यूज नहीं हो रहे. ठीक है ना? अब यहाँ पे आप सोशियल हो रहे हो थोड़े से, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक पीएचडी का गाड़ियां साफ करना इज नॉट मीनिंगफुल मेरे बेटा. उसका रिसोर्स वेस्ट हो रहा है ना. आपने इतना पैसा लगाया उसको ट्रेन करने में, रिसर्च स्किल सिखाने में. एक सर्जन को आपने कहा जी जूते गांठो, समझ रहे हो ना? या दैट्स द थिंग. अब बेटे, यस, देर अंडर प्रोड्यूसिंग, देर अंडर अचीविंग. बिल्कुल सही है. लास्ट जी क्वेश्चन, कैसे हल करें अनएम्प्लॉयमेंट को, 4 मार्क्स एक्सप्लेनेशन एनालिसिस के थे. वो कहता है जी एक्सप्लेनेशन, हाँ ये तो वो सॉरी और क्वेश्चन है. असेस वेदर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू बी अ मोर सीरियस प्रॉब्लम देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इन फॉर इंडियाज इकोनॉमी. तो expansionary explanation analysis of seasonal unemployment in India such as in relation to agriculture sector, बड़ा डिटेल दी हुई थी, उसी को लेके हम बता देंगे कि 9.8 मिलियन अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा. स्पेशली दिसंबर के सीजन में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है. वर्कर्स का आखिरी रिजॉर्ट जॉब का ये है लेकिन उनको मिल नहीं रही. फिर जी वो कह रहा है जी फ्रिक्शनल के बारे में कि एक्सप्लेनेशन एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया रिजल्टिंग फ्रॉम reluctance of people to locate to other places, geographical immobility or other sectors to take job,
ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, ठीक है जी, इसको एक्सप्लेन करना है तो उसके रिजल्ट में 6 मिलियन लोग जो एंटर हुए थे जॉब फोर्स में, उनमें से मेजॉरिटी को जॉब नहीं मिली। इवैल्यूएशन जी ज़्यादा सीरियस कौन सी है? मोर सीरियस प्रॉब्लम हमने इसमें सर्टन की थी कि सीजनल है, 9.8 मिलियन अनएम्प्लॉयड थे, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा सीरियस थी। एनीवन एनी प्रॉब्लम जी? Last question: assess the possible measures that could be taken to increase employment in a country such as India. My advice: take it policies के question को हमेशा तरतीब से करें, demand side, supply side. तो सबसे पहले fiscal could be used to increase employment such as through decreases in taxes, और ये कौन से taxes हैं? Direct taxes. And or increases in public expenditure, मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वगैरह पे। इसमें टू इंक्लूड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ सच मेजर्स, एक आधी प्रॉब्लम भी बता देंगे हम कि गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में जाके इफेक्ट आएगा, डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक एजेंट्स आगे से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट के टैक्स या स्पेंडिंग के ऊपर। Monetary policy could be used to increase employment, such as through decrease in interest rate and or increase in money supply, to include potential problems of such measures. Interest elasticity of demand कैसी है, फ्यूचर कॉन्फिडेंस है कि नहीं इकोनॉमी में, उस पर डिपेंड करेगा कितनी सक्सेसफुल होगी ये भी। और सप्लाई साइड पॉलिसीज could be used to increase employment, such as through making the labor market more flexible, training and education के through। उसके अलावा जी reduce disincentive to work, such as reducing unemployment benefits, reducing marginal rate of tax, and encouragement of investment, to include potential problems of such measures। long run में जाके effect आएगा, पैसा बहुत लगता है, opportunity cost आती है। 2 marks evaluation के लिए थे, relevant evaluation such as in relation to the extent of unemployment, जैसे हमने देखा कि कोई तकरीबन 4.5% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, क्या ये मेजर शॉर्ट टर्म, जैसे मैंने बोला डिमांड साइड वाली पॉलिसीज शॉर्ट टर्म फिक्स हैं, सप्लाई साइड वाली पॉलिसीज लॉन्ग टर्म फिक्स हैं। डिमांड साइड पॉलिसीज मेनली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को ट्रिगर करती हैं, टारगेट करती हैं, जबकि सप्लाई साइड स्ट्रक्चरल को, फ्रिक्शनल को, सीजनल को और उनको देख रही होगी। समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? दिस वॉज आई थिंक रिलेटिवली ऑड डाटा रिस्पॉन्स, पूरा ही अनएम्प्लॉयमेंट में से दे दिया, जो कि एक बड़ा ही बच्चे इग्नोर्ड एक किस्म का चैप्टर है। अब बच्चों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सेक्शन बी का ए पार्ट, ये कुछ स्कूलों के मिड्स में मैंने दिया भी था। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कॉजेज ऑफ ए मूवमेंट अलोंग एंड अ शिफ्ट ऑफ पीपीसी एंड कंसिडर विच इज लाइकली टू हैव द मोस्ट इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन एन इकोनॉमी। मुझे बताएं ये सॉल्व करवा दूं या जुबानी आपसे डिस्कस कर लूं, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो गलती बच्चे करते हैं, एक पॉइंट इनसाइड पीपीसी लगा देते हैं, एक आउटसाइड लगा देते हैं। बेटे कहीं उसने पूछा है कि मुझे दिखाओ पीपीसी पे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है, या रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे, लेबर यूज नहीं हो रही। कहीं उसने कहा है कि मुझे दिखाओ स्कार्सिटी कहाँ है, उसने सिर्फ कहा है मूवमेंट अलोंग ऑन पीपीसी। मूवमेंट अलोंग पीपीसी का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट इनसाइड पीपीसी से पीपीसी पे आ रहा है। 2 पॉइंट पीपीसी के ऊपर ही लगाने, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करनी है, ठीक है? तो मैं एक बार ड्रॉ कर ही देता हूं ताकि ये एक कांस्टेंट। जी मेरा बेटा, नहीं बेटे, शिफ्ट में पूरा पीपीसी शिफ्ट हो रहा होता है। ये प्लीज एक कॉमन बच्चों की गलती है कि हम सारा कुछ पीपीसी का लिखते हैं, मार्क्स वही मिलने हैं जहां पे आपने सही बात करनी है, अदरवाइज यूर वेस्टिंग योर एफर्ट, वेस्टिंग योर टाइम। और एग्जामिनर मुसलसल ख्वार हो रहा है कि इसका असल आंसर है कहाँ पे, उसको अच्छा आंसर भी ना वो 4-5 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ मिसडायरेक्टेड अटेम्प्ट। अच्छा जी, मैं जल्दी से अब आपको ये इसको कॉपी भी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, और इसी के ऊपर हम क्लास खत्म करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद प्लीज जो बच्चे खामोश बैठे हैं, प्लीज डू आस्क क्वेश्चन। जी बेटे, जी जी जी। 12 मार्क वाला कौन सा? बफर स्टॉक स्कीम पे कल पूरा करेंगे बेटे, वो
क्योंकि मैंने आपको ब्रीफ सा पढ़ाया हुआ है और ये अनएक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन आया था, तो यस विल डू इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। अच्छा जी, नॉलेज के अब सबको पता होने चाहिए। कितने मार्क्स हैं बच्चों? 3 मार्क्स। और इसको हम पहले टारगेट करते हैं, पीपीसी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है जी। फिर ड्रॉ करते हैं, फिर मूवमेंट अलोंग दिखाते हैं। ये आपका हर का एक एक मार्क, बेसिकली टीपीसी ड्रॉ करने के ही 2 मार्क्स हैं, लेकिन हम एहतियातन डिफाइन भी कर रहे हैं। तो उसने पहले कहा जी पीपीसी पे मूवमेंट अलोंग पीपीसी के कॉजेज बताओ, लेबल गुड वाई गुड एक्स, उसने कोई गुड हमें नहीं बताई थी, तो हमने अपनी तरफ से गुड वाई गुड एक्स कर ली। अब मेरे बच्चों एक पीपीसी ड्रॉ करें, उसको कोई भी नंबर दे दें या वेरिएबल्स दे दें, लेट्स से 100, 50। अब 2 पॉइंट्स लगाएं, कोई जरूरत नहीं इन साइड पीपी से लगाने की पॉइंट और आउटसाइड की। इस वक्त कोई 80 बन रही थी ये, और कोई 30 बन रही थी गुड एक्स। मूवमेंट अलोंग पीपीसी कैसे हुई, इसकी रीजन हमेशा क्या होती है, मुझे कोई बच्चा बताएगा? यस, मूवमेंट अलोंग पीपीसी इज ड्यू टू, ये मैं कैपिटल में लिख रहा हूं बच्चों, ये वर्ड मिस नहीं करना, ड्यू टू रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वी मूव रिसोर्सेज फ्रॉम गुड वाई टू गुड एक्स। अच्छा बच्चा यहाँ रीजन भी दे दो, गुड एक्स मे बी मोर पॉपुलर इन अ मार्केट इकोनॉमी, और इट्स अ मेरिट गुड एंड इट्स अ पब्लिक सेक्टर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और फिर इसके रिजल्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताएं कि टू मेक 10 extra good y we gave up 30 of good so 10 extra good x we gave up 30 of good y। और इसको यहाँ डिफाइन भी कर दें, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। कोई कंफ्यूजन बच्चों? अगर कॉन्फिडेंट है तो इसी के ऊपर आप पूरा शिफ्ट भी दिखा दें। अब मैं कर रहा हूं जी 150 और इधर 100 कर दिया मैंने। अब इसके रीजंस बताएं जी, शिफ्ट ऑफ पीपीसी क्यों आता है? ये चीज ना मजा आया, चेंज इन क्वालिटी एंड और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रीजन बता देंगे जी, लेबर की एजुकेशन या ट्रेनिंग हो गई है, या नेट माइग्रेशन पॉजिटिव हो गई है, नए ऑयल गैस निकल आए हैं, नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, जिसकी वजह से पीपीसी बाहर शिफ्ट हुआ है। एहतियातन अंदर शिफ्ट की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड शिफ्ट ऑफ है। मुझे इस क्वेश्चन की मार्क्स स्कीम पता है, तो मैं अंदर वाले शिफ्ट नहीं करा रहा। नेचुरल डिजास्टर वगैरह कर दो एहतियातन। अब जी मोस्ट इमीडिएट इफेक्ट, ये एनालिसिस आपके 3 हो चुके हैं, बाय मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, एक्सप्लेन करने के, रीजंस देने के। किसका इमीडिएट इम्पैक्ट है, क्या काम आसान है अपने पीपीसी के ऊपर? रीएलोकेशन। आपने वर्कर को, लैंड को उठा के एक और काम पे लगा दिया, इमीडिएटली हो गया, शॉर्ट रन है ये। जबकि पूरा शिफ्ट होने में पीपीसी, वर्कर्स को ट्रेन करने में, एजुकेट करने में, नए रिसोर्सेज दरियाफ्त करने में, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कई साल लग सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है शिफ्ट ऑफ पीपीसी, पोटेंशियल ग्रोथ। तो बेसिकली इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा, 2 मार्क्स आप एक्सप्लेन करोगे जब इवेल्युएशन के लिए, फॉर अ मूवमेंट अलोंग द पीपीसी। सब बच्चों को क्लियर हो गया है जी, या कोई क्वेश्चंस? जी बोले। जी जी जी। उसकी रीजन डिमांड साइड पॉलिसीज, क्योंकि आपने मैक्रो में पढ़ा हुआ है, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होती है तो वी कम क्लोजर टू आर पीपीसी। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन देखो देखो, अगर तो सब्सिडीज को हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग में डाल के एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करवा के कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन में हो सकता है। बस बी वेरी केयरफुल, यू मेक इट वेरी क्लियर कि डिमांड साइड पॉलिसी से होता है ये। ठीक है ना, गुड वन, वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन जी, लेट्स नाउ क्लोज द रिकॉर्डिंग।